ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 22 ಸೋಮವಾರದಂದು ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಕನಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ದಿವಸ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದು ಸವಿನಯ ವಿನಂತಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಮ ಹವನ ಇರ್ತದೆ. 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ 9:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸನ್ಮಾನ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಕರಸೇವಕರು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ, ಹಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಗುರ್ತಾ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 511 ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇರ್ತದೆ. ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು, ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಜಯಪುರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ವತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಇರ್ತಾವು. ಭೀಮರಾವ್ ಜೋಶಿ ತೆಲಗಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಭಾರತಿ ಕುಂದನಗಾರ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಾವು. ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ನಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು LED ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಆದ ನಂತರ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವತ್ತು ಯಾರೂ ಉಪವಾಸ ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗರು ಇರ್ಬೋದು. ಅವತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಅವತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಾರಂಭ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ತಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ತಾವು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ದುರ್ಗಾ ದ್ಯಾಮನ್ ಗುಡಿ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಂಗೋಲಿ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದ. ಅವತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಅದರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಎದುರುಗಡೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಜಾಪುರದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಅವು ಪಕ್ಷ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಹಿಂದೂ ಬಂದು ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅವತ್ತು ನಾವು ಸುಮಾರು 25-26 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿವಿ. ಅವತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗದಾರ, JDS ಒಳಗದಾರ, ಬೇರೆ BJP ಒಳಗದಾರ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಾಗ ಅದಾರ. ಅವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಯಾರು ಹೋರಾಟಗಾರ ಅದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅವರೇ ಇವರೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವೇದಿಕೆ, ಕರಸೇವಕರ ವೇದಿಕೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಶನಿ ದೇವರ ಮಂದಿರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ. 108 ಜನರ ಹೋಮ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ, ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ, ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ, ಸಾಯಂಕಾಲ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ. ಒಂದ್ 4-5 ಜನ ಗೊಳೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ಬರ್ಲಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಪೂರ ಬಂದತ್ತೇನು ಇರುದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೊಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಇವತ್ತಿಗೆ, ಹಬ್ಬದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಆ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಿಜಾಪುರದ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಲಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ. ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 22ರಂದು ಏನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ವಂದಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಎದುರುಗಡೆ 108 ಮಂದಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 108 ಮಂದಿ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಮ ಹವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದ. ಅದರ ನಂತರ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಕರಸೇವಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, 511 ಮಂದಿಗೆ
ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಉಮೇಶ್ ಹೊಂದಾಲ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗ ಮತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು. ಅವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 8,000 to 10,000 ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಂದಂತ ಕರಸೇವಕರಿಗೆ ಏನು ಸನ್ಮಾನಗೊಳ್ತಾರ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕರಸೇವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದಂತ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ಅವತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ. ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ನಡೀತಾವೆ. ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಎದ್ರೊಳಗೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಾತ್ಮರ ಏನು ಸರ್ಕಲ್ಗಳದಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಸರಿಮಯ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅದರೊಳಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 22 ಸೋಮವಾರರಂದು ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹಿಂದೂಗಳ ಕನಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ದಿವಸ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದು ಸವಿನಯ ವಿನಂತಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಮ ಹವನ ಇರ್ತದೆ. 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ 9:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸನ್ಮಾನ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಕರಸೇವಕರು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ, ಹಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಗುರ್ತಾ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 511 ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇರ್ತದೆ. ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು, ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಜಯಪುರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ವತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಇರ್ತಾವು. ಭೀಮರಾವ್ ಜೋಶಿ ತೆಲಗಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಭಾರತಿ ಕುಂದನಗಾರ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಾವು. ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ನಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು LED ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಆದ ನಂತರ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವತ್ತು ಯಾರೂ ಉಪವಾಸ ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗರು ಇರ್ಬೋದು. ಅವತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಅವತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಾರಂಭ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ತಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ತಾವು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ದುರ್ಗಾ ದ್ಯಾಮನ್ ಗುಡಿ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಂಗೋಲಿ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದ. ಅವತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಎದುರುಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಜಾಪುರದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಅವು ಪಕ್ಷ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಬಂದು ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅವತ್ತು ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-26 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿವಿ. ಅವತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗದಾರ, JDS ಒಳಗದಾರ, ಬೇರೆ BJP ಒಳಗದಾರ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಾಗ ಅದಾರ. ಅವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಯಾರು ಹೋರಾಟಗಾರ ಅದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅವರೇ ಇವರೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವೇದಿಕೆ, ಕರಸೇವಕರ ವೇದಿಕೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಶನಿದೇವ್ರ ಮಂದಿರ ಅಂತಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ. 108 ಜನರು ಹೋಮ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ, ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಅದ, ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅದ, ಸಾಯಂಕಾಲ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ. ಒಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ಜನ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ಬರಲಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಬಂದತ್ತೇನು ಇರುದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೊಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಹಬ್ಬದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಆ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಿಜಾಪುರದ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಲಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ. ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 22ರಂದು ಏನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ವಂದಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು 108 ಮಂದಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 108 ಮಂದಿ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಮ ಹವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದ. ಅದರ ನಂತರ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಕರಸೇವಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, 511 ಮಂದಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಉಮೇಶ್ ವಂದಾಲ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗ. ಮತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು. ಅವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 8,000 to 10,000 ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಂದಂತ ಕರಸೇವಕರಿಗೆ ಏನು ಸನ್ಮಾನಗೊಳ್ತಾರ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕರಸೇವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದಂತ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ಅವತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ. ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ನಡೀತಾವೆ. ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಎದರೊಳಗೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಾತ್ಮರ ಏನು ಸರ್ಕಲ್ಗಳು ಅದಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಸರಿಮಯ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅದರೊಳಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद करने का ख़ास मकसद जो है मुल्क भर के अंदर एसडीपीआई की जानिब से जो है एक ज्वाइन एसडीपीआई बोल के एक मेंबरशिप कैंप चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से अवाम से रूबरू होकर ये बताना है कि आप एसडीपीआई के साथ जुड़ सकते हैं और जो है एसडीपीआई के प्लेटफॉर्म पर आप एसडीपीआई का एक हिस्सा बने। क्योंकि जिस तरह एसडीपीआई जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज मुल्क भर के अंदर एक अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए एक आगे बढ़ रही है, इस आवाज़ का एक आप लोग अवाम जो है इसका हिस्सा बने। और लगभग 13 साल से ये हमारी ये पार्टी जो है अपने एक हक पर मौजूद है और साथ ही साथ जो है एक इस पार्टी का जो नारा है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, बखूबी इस पर जो है बिना किसी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ के इस पर हम लोग काम को अंजाम दे रहे हैं। जिस कदर आज इस मुल्क के अंदर हालात पेश आ रहे हैं कि एक कम्युनिटी को खास तौर से चंद कम्युनिटी को टारगेट करके दबाया जा रहा है, इनके तरफ से जो है एसडीपीआई हमेशा से जो है आवाज़ उठाते आ रही है और हमेशा से जो है मजलूम के साथ में हमेशा से खड़ी रही है। और हमारे खास तौर से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एसडीपीआई एक ऐसी पार्टी है जहाँ किसी किस्म का जातिवाद और भेदभाव हरगिज न किया जाता न बर्दाश्त किया जाता है। तो इसके तहत जो है हम लोगों की जानिब से आज बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के हम डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एसडीपीआई के साथ जुड़ें। क्योंकि जिस कदर जेडीएस अब एक जो कि मुसलमानों का एक चेहरा या फिर मुसलमानों की एक वोट बैंकिंग को लेकर अब तक राज करते आई हुई है इस कर्नाटका के अंदर, तो इस तरह से जो है आज अचानक से अपनी एक एजेंडे को पलट कर जो है बीजेपी के साथ मिलकर बहुत से माइनॉरिटीज लोगों को जो है एक धक्का देने जैसा काम किया है। तो इसी तरह कांग्रेस जो है आज मुस्लिम कम्युनिटीज के वोट बैंक को इस्तेमाल करके उनके किसी भी इशू पर जो है बात ना करते हुए अपनी एक अलग ही राजनीति कांग्रेस जो है अपना बता रही है। तो हम लोगों को ये सोचना जरूरी है कि क्यों हमारी एक सियासी जो है पार्टी ना हो, क्यों हम मजलूमों की जो है माइनॉरिटीज की जो है एक पार्टी सियासी पार्टी क्यों ना हो, क्यों हम एक सियासी सोच ना रखें, क्यों कब तक हम दूसरे पार्टियों की जानिब जो है मुतवज्जा होंगे, कब तक हम दूसरे पार्टियों का एक वोट बैंक बनकर काम करते रहेंगे। हमारा अपना एक प्लेटफॉर्म जो है उसे हम लोग मजबूत करके जो है यहाँ से सभी कम्युनिटीज को, हर कम्युनिटी के लोगों को, जिसमें मुस्लिम है, दलित है और सिख है, ईसाई है, हिंदू भाई है, सब भाइयों को जो है इस प्लेटफॉर्म से आकर जो है अपनी आवाज को बुलंद करना जो है जरूरी समझता हूं। और जिस कदर जब कांग्रेस के अंदर एक मुस्लिम पार्टी के तहत जैसा कि जमीर अहमद खान ने हिजाब के ताल्लुक से जब बात किया, जब यूटी कादर साहब ने उन्होंने जो है हिजाब के ताल्लुक से बात करने वालों को सऊदी अरब के
जाने का जो रास्ता बताइए। एक कम्युनिटी के आप वोट लेकर मुस्लिम एमएलए होते हुए भी आप एक इशू पर बात करना मुनासिब नहीं समझते और आपको पार्टी इजाजत नहीं देती। लेकिन हमारी एसडीपीआई पार्टी ऐसी है जहां पर खड़े रहकर आप बिना झिझक के, बिना किसी के जो है रोक टोक के आप अपने हक की आवाज को, अपनी कम्युनिटी का हो, अपने शहर का हो, अपने मोहल्ले का हो, अपनी रियासत का हो, अपने मुल्क का हो, किसी भी आवाज को जो है आप बेझिझक यहां से उठा सकते हैं, बयान कर सकते हैं और गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड भी जो है रख सकते हैं। तो मेरा यही एक लोगों से मुतालबा है कि जो लोग जेडीएस में अभी हैं, जो जेडीएस से नाराज भी चल रहे हैं, ऐसे लोग भी जो है हमारी पार्टी की तरफ आने की जो है सोचें और हम भी आपसे जो है मुलाकात भी करेंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में कई सालों से काम करते आ रहे हैं लेकिन कभी उनका चेहरा तक कांग्रेस के तहत जो है नहीं दिखाया गया, उनकी आवाज को कभी नहीं सुनाया गया, हमेशा उनके मकासद को जो है दबाया गया, ऐसे लोगों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है हमारी पार्टी के साथ जुड़कर आप हमारी पार्टी का एक हिस्सा बने और जो है इस पार्टी को मजबूत करें और अपनी आवाज को जो है बुलंद करें, यह मेरा एक कहना है। और साथ ही साथ मेरा एक खास तौर से लोगों अवाम से यह कहना है कि हमारी एसडीपीआई को जो है एक बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम पार्टी है, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। ये एक न्यूज चैनल वाले जो है, एक नेशनल न्यूज हो या गोदी मीडिया हो, इसे प्रोपोगंडा के तौर पर इसको पेश कर रहे हैं अवाम के सामने। जबकि हमारे स्टेट के जो लीडर्स हैं, मैं बिल्कुल आपके सामने बताना चाहता हूं कि एक गुलदस्ते की तरह है। एक गुलदस्ता मतलब जिसमें हर किस्म का फूल मौजूद हो, वैसा फूल हमारे जो है हर कम्युनिटी से जो है हमारे स्टेट के अंदर मौजूद है। हर कम्युनिटी से जो है स्टेट मेंबर, हमारा स्टेट लीडर जो है मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह हमारी भी एक ख्वाहिश है कि हमारे बीजापुर जिला भी जो है हर कम्युनिटी के फूल से जो है ये रोशनास रहे और यही जो फूल है एक हमारे कम्युनिटी का एक हिस्सा बने, हमारे पार्टी का एक हिस्सा बने और हमारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जो है उजागर करे। तो ये सोच रखते हुए हम लोग आज मीडिया से रूबरू हुए हैं और यही उम्मीद हम लोग रखते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझेंगे, अपनी आवाज को समझेंगे, क्योंकि कब तक हम लोग जो है लोगों के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर गुलामी के करते हुए उनकी जहनियत को अपना मजहब मानते हुए या फिर उनकी जहनियत को अपना हुक्म उनका अपने सराखों पर बिठाते हुए जो है हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आपको अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपनी कम्युनिटी के ताल्लुक से सोचना है। मैं ये बात सब कम्युनिटीज के लिए कहता हूं, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं। मुस्लिम को मुस्लिम कम्युनिटी की सियासी उरूज के ताल्लुक से सोचना ही है, दलित को दलित कम्युनिटी की सियासी उरूज के ताल्लुक से सोचना ही है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन कम्युनिटी के ताल्लुक से सोचना ही है, हिंदू भाई को हिंदू भाई की कम्युनिटी के ताल्लुक से सोचना ही है। हर कम्युनिटी को अपने अपने ताल्लुक से सोचने का हक सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई में है। अदर पार्टी में आप लोग देखेंगे तो वहां पर कुछ कम्युनिटीज का खास एक मकसद बना हुआ है, जैसे छोड़कर अगर आप बात करेंगे तो आपको बात किया करने दिया नहीं जाएगा, आपको उल्टा दबाया जाएगा या फिर नोटिस इशू तक आपको की जाएगी। जैसा कि हमारे जमीर अहमद खान साहब भी हुआ और हमारे सीएम इब्राहिम के साथ, इनको भी जिसकी वजह से पार्टी तक छोड़ना पड़ा, इनके साथ भी ये मामला पेश आया। तो ये मामला हमारे पार्टी के अंदर नहीं, आप अपने ताल्लुक से अपने शहर, अपने मोहल्ला, अपना रियासत और अपनी कम्युनिटी, ये सारी चीजों की तड़प आप रखते हुए अपनी आवाज को बुलंद करें। तो मैं इसी के साथ साथ मैं अपने बात आवाम तक यही आखिरी करना चाहता हूं कि आप एसडीपीआई को ज्वाइन करें और इसका एक हिस्सा जो है आपके सामने रखना चाहूंगा कि आप लोगों को ज्वाइन होने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट के किसी भी जिम्मेदारान से जो है राब्ता भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही आसान तरीका जो है, हमारा एक नंबर हम आप लोगों के सामने देंगे और इंशाल्लाह ये नीचे भी आप लोगों को इसमें स्क्रीन के नीचे दिया जाएगा, 9606827343। एक बार और आप नंबर पर गौर कीजिए, 9606827343। इस नंबर के जरिए जो है आप लोग व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोग इसमें एसडीपीआई में ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक क्यूआर कोड भी है इसका, वो भी आपके सामने अवाम के सामने शाया किया जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप जो स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आप जो है एसडीपीआई ग्रुप में शामिल होंगे इंशाल्लाह। एसडीपीआई ज्वाइन क्यों करें, एक क्वेश्चन आता है। देखिए सर, सवाल तो ये लाजिम है कि एसडीपीआई हजारों पार्टियां होने के बावजूद भी एसडीपीआई को ही क्यों ज्वाइन किया जाए, क्योंकि मैं अपने एक बात में अभी बताया कि एसडीपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी पार्टी है जो एक मजलूम के साथ खड़ी होती, जालिम के खिलाफ बोलती, हुकूमत के बेजा जो है लॉ पास किया जाता है उसके खिलाफ सबसे बढ़कर अगर कोई पार्टी बोलती तो एसडीपीआई बोलती। और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल है जहां पर जो भी हमारे चुनिंदा मेंबर रहते हैं, वो चुनिंदा मेंबर गवर्नमेंट के जानिब से दिया जाने वाला अवाम का अमानत, अवाम का पैसा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अवाम के लिए खर्च किया जाता है। किसी खास एक कम्युनिटी को टारगेट बनाकर ना तो उस पर जुल्म किया जाता है, ना तो उसे उरूज में लाने की कोशिश की जाती है। हर कम्युनिटी को एकसानियत जहां से देखते हुए एक जो है हम लोग आवाज को, अपनी हक की आवाज को बुलंद करते हैं। सर, अब लोगों में एक दौड़ है, एसडीपीआई पार्टी यानी मुस्लिम की पार्टी, सिर्फ मुस्लिम लोग उसमें रहते हैं। जी, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आप एक सियासी सोच बनाएं,
क्योंकि अगर आप एक सियासी सोच नहीं बनाएंगे, हालात पर एक नजर नहीं डालेंगे, हालात से जायजा नहीं लेंगे, तो ये बिकाऊ मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, ये आपके जहनों को जो है अपने तरीके से जो है मोटिवेट करेंगे। तो ये जो है एक मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि एसडीपीआई को खास तौर से एक मुस्लिम कम्युनिटी की पार्टी बताया जाए बोल के, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपके सामने कहा कि मेरे स्टेट और नेशनल के अंदर जो कमेटी है, स्टेट कमेटी और नेशनल कमेटी, इसके अंदर एक गुलदस्ता की तरह हमारी कमेटी है, जिसमें हर किस्म के फूल बस जैसा गुलदस्ते में बसते हैं, उसी तरह से हर कम्युनिटी के, हर मजहब के लोग हमारे पार्टी में मौजूद हैं। सर स्टेट में मौजूद है, लेकिन बीजापुर में आपके पार्टी में कितने बाकी मजहब के लोग हैं? जी, वही मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा भी एक उम्मीद है, हमारी भी एक ख्वाहिश है, हमारी भी एक सोच यह है कि हमारी पार्टी में अदर कम्युनिटीज भी हमारे साथ जुड़े, जो हम भी खुद जो है हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कमेटी को जो है एक गुलदस्ता की तरह सजाएं। अभी तक आपने मतलब कोई आपकी कमेटी में दूसरे मजहब के लोग जी फिलहाल नहीं है, हम लोग अप्रोच हो रहे हैं और उम्मीद भी है इंशाल्लाह इस बार ज्वाइन होंगे, क्योंकि बहुत से अदर कम्युनिटीज के लोगों ने हमें भरोसा भी दिलाया है। अब देखना यह है कि कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, इंशाल्लाह होंगे, हमारी एक उम्मीद है। क्यों सर अभी तक क्यों ज्वाइन है? आपकी पार्टी तो काफी सालों से आ चुके हैं। जी, काफी अरसे से। क्या आपकी कमी रही, आप वो लोगों तक नहीं पहुंचे? नहीं, एक किस्म से हमारे अपने ड्यूटीज के अंदर इस कदर मशगूल रह गए कि शायद हमें पहुंचने में देरी हुई। लेकिन जब मेरा एक मानना है कि जब भी कोई चीज जब तक मजबूती से अपने आप को साबित नहीं करती, उस वक्त तक क्या है, लोग उससे जुड़ने के ताल्लुक से आनाकानी करते हैं, फिर सोचते रहते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक मुकाम पर अपनी एक मजबूती पकड़ चुकी है, जिसके जरिए अब हमारी रफ्तार को हम लोग यहां से तेज करेंगे। इसी तेजी रफ्तार के साथ साथ हम इंशाल्लाह हर कम्युनिटीज को अपने साथ में जरूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद करने का खास मकसद जो है, मुल्क भर के अंदर एसडीपीआई की जानिब से जो है एक ज्वाइन एसडीपीआई बोल के एक मेंबरशिप कैंप चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से अवाम से रूबरू होकर यह बताना है कि आप एसडीपीआई के साथ जुड़ सकते हैं और जो है एसडीपीआई के प्लेटफॉर्म पर आप एसडीपीआई का एक हिस्सा बने। क्योंकि जिस तरह एसडीपीआई जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज मुल्क भर के अंदर एक अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए एक आगे बढ़ रही है, इस आवाज़ का एक आप लोग अवाम जो है इसका हिस्सा बने। और लगभग 13 साल से ये हमारी ये पार्टी जो है अपने एक हक पर मौजूद है, और साथ ही साथ जो है एक इस पार्टी का जो नारा है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, बखूबी इस पर जो है बिना किसी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ के इस पर हम लोग काम को अंजाम दे रहे हैं। जिस कदर आज इस मुल्क के अंदर हालात पेश आ रहे हैं कि एक कम्युनिटी को, खास तौर से चंद कम्युनिटी को टारगेट करके दबाया जा रहा है, इनके तरफ से जो है एसडीपीआई हमेशा से जो है आवाज़ उठाते आ रही है और हमेशा से जो है मजलूम के साथ में हमेशा से खड़ी रही है। और हमारे खास तौर से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एसडीपीआई एक ऐसी पार्टी है जहाँ किसी किस्म का जातिवाद और भेदभाव हरगिज न किया जाता, ना बर्दाश्त किया जाता है। तो इसके तहत जो है हम लोगों की जानिब से आज बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के, हम डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एसडीपीआई के साथ जुड़ें। क्योंकि जिस कदर जेडीएस अब एक जो कि मुसलमानों का एक चेहरा या फिर मुसलमानों की एक वोट बैंकिंग को लेकर अब तक राज करते आई हुई है इस कर्नाटका के अंदर, तो इस तरह से जो है आज अचानक से अपनी एक एजेंडे को पलट कर जो है बीजेपी के साथ मिलकर बहुत से माइनॉरिटीज लोगों को जो है एक धक्का देने जैसा काम किया है। तो इसी तरह कांग्रेस जो है आज मुस्लिम कम्युनिटीज के वोट बैंक को इस्तेमाल करके उनके किसी भी इशू पर जो है बात ना करते हुए अपनी एक अलग ही राजनीति कांग्रेस जो है अपना बता रही है। तो हम लोगों को ये सोचना जरूरी है कि क्यों हमारी एक सियासी जो है पार्टी ना हो, क्यों हम मजलूमों की जो है माइनॉरिटीज की जो है एक पार्टी, सियासी पार्टी क्यों ना हो, क्यों हम एक सियासी सोच ना रखें, क्यों कब तक हम दूसरे पार्टियों की जानिब जो है मुतवज्जा होंगे, कब तक हम दूसरे पार्टियों का एक वोट बैंक बनकर काम करते रहेंगे। हमारा अपना एक प्लेटफॉर्म जो है उसे हम लोग मजबूत करके जो है यहाँ से सभी कम्युनिटीज को, हर कम्युनिटी के लोगों को, जिसमें मुस्लिम है, दलित है और सिख है, ईसाई है, हिंदू भाई है, सब भाइयों को जो है इस प्लेटफॉर्म से आकर जो है अपनी आवाज को बुलंद करना जो है जरूरी समझता हूं। और जिस कदर जब कांग्रेस के अंदर एक मुस्लिम पार्टी के तहत, जैसा कि जमीर अहमद खान ने हिजाब के ताल्लुक से जब बात किया, जब यूटी कादर साहब ने उन्होंने जो है हिजाब के ताल्लुक से बात करने वालों को सऊदी अरब के जाने का जो रास्ता बताया, एक कम्युनिटी के आप वोट लेकर मुस्लिम एमएलए होते हुए भी आप एक इशू पर बात करना मुनासिब नहीं समझते और आपको पार्टी इजाजत नहीं देती। लेकिन हमारी एसडीपीआई पार्टी ऐसी है जहां पर खड़े रहकर आप बिना झिझक के, बिना किसी के जो है रोक टोक के आप अपने हक की आवाज को
अपनी कम्युनिटी का हो, अपने शहर का हो, अपने मोहल्ले का हो, अपनी रियासत का हो, अपने मुल्क का हो, किसी भी आवाज को जो है आप बेझिझक यहां से उठा सकते हैं, बयान कर सकते हैं और गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड भी जो है रख सकते हैं। तो मेरा यही एक लोगों से मुतालबा है कि जो लोग जेडीएस में अभी हैं, जो जेडीएस से नाराज भी चल रहे हैं, ऐसे लोग भी जो है हमारी पार्टी की तरफ आने की जो है सोचें, और हम भी आपसे जो है मुलाकात भी करेंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में कई सालों से काम करते आ रहे हैं लेकिन कभी उनका चेहरा तक कांग्रेस के तहत जो है नहीं दिखाया गया, उनकी आवाज को कभी नहीं सुनाया गया, हमेशा उनके मकासद को जो है दबाया गया, ऐसे लोगों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है हमारे पार्टी के साथ जुड़कर आप हमारी पार्टी का एक हिस्सा बने और जो है इस पार्टी को मजबूत करें और फिर अपनी आवाज को जो है बुलंद करें, यह मेरा एक कहना है। और साथ ही साथ मेरा एक खास तौर से लोगों अवाम से यह कहना है कि हमारी एसडीपीआई को जो है एक बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम पार्टी है, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। ये एक न्यूज चैनल वाले जो है, एक नेशनल न्यूज हो या गोदी मीडिया हो, इसे एक प्रोपोगंडा के तौर पर इसको पेश कर रहे हैं अवाम के सामने, जबकि हमारे स्टेट के जो लीडर्स हैं, मैं बिल्कुल आपके सामने बताना चाहता हूं कि एक गुलदस्ते की तरह है। एक गुलदस्ता मतलब जिसमें हर किस्म का फूल मौजूद हो, वैसा फूल हमारे जो है हर कम्युनिटी से जो है हमारे स्टेट के अंदर मौजूद है। हर कम्युनिटी से जो है स्टेट मेंबर, हमारा स्टेट लीडर जो है मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह हमारी भी एक ख्वाहिश है कि हमारे बीजापुर जिला भी जो है हर कम्युनिटी के फूल से जो है ये रोशनास रहे और यही जो फूल है एक हमारे कम्युनिटी का एक हिस्सा बने, हमारे पार्टी का एक हिस्सा बने और हमारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जो है उजागर करे। तो ये सोच रखते हुए हम लोग आज मीडिया से रूबरू हुए हैं और यही उम्मीद हम लोग रखते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझेंगे, अपनी आवाज को समझेंगे, क्योंकि कब तक हम लोग जो है लोगों के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर गुलामी के करते हुए, उनकी जहनियत को अपना मजहब मानते हुए या फिर उनकी जहनियत को अपना हुक्म, उनका अपने सराखों पर बिठाते हुए जो है हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आपको अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपनी कम्युनिटी के ताल्लुक से सोचना है। मैं ये बात सब कम्युनिटीज के लिए कहता हूं, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं। मुस्लिम को मुस्लिम कम्युनिटी की सियासी उरूज के ताल्लुक से सोचना ही है, दलित को दलित कम्युनिटी की सियासी उरूज के ताल्लुक से सोचना ही है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन कम्युनिटी के ताल्लुक से सोचना ही है, हिंदू भाई को हिंदू भाई की कम्युनिटी के ताल्लुक से सोचना ही है। हर कम्युनिटी को अपने अपने ताल्लुक से सोचने का हक सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई में है। अदर पार्टी में आप लोग अब देखेंगे तो वहां पर कुछ कम्युनिटीज का खास एक मकसद बना हुआ है, जैसे छोड़कर अगर आप बात करेंगे तो आपको बात किया करने दिया नहीं जाएगा, आपको उल्टा दबाया जाएगा या फिर नोटिस इशू तक आपको की जाएगी, जैसा कि हमारे जमीर अहमद खान साहब भी हुआ और हमारे सीएम इब्राहिम के साथ, इनको भी जिसकी वजह से पार्टी तक छोड़ना पड़ा, इनके साथ भी ये मामला पेश आया। तो ये मामला हमारे पार्टी के अंदर नहीं, आप अपने ताल्लुक से अपने शहर, अपने मोहल्ला, अपना रियासत और अपनी कम्युनिटी, ये सारी चीजों की तड़प आप रखते हुए अपनी आवाज को बुलंद करें। तो मैं इसी के साथ साथ मैं अपने बात आवाम तक यही आखिरी करना चाहता हूं कि आप एसडीपीआई को ज्वाइन करें और इसका एक हिस्सा जो है आपके सामने रखना चाहूंगा कि आप लोगों को ज्वाइन होने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट के किसी भी जिम्मेदारान से जो है राब्ता भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही आसान तरीका जो है, हमारा एक नंबर हम आप लोगों के सामने देंगे और इंशाल्लाह ये नीचे भी आप लोगों को इसमें स्क्रीन के नीचे दिया जाएगा, 9606827343। एक बार और आप नंबर पर गौर कीजिए, 9606827343। इस नंबर के जरिए जो है आप लोग व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोग इसमें एसडीपीआई में ज्वाइन हो सकते हैं और साथ ही साथ एक क्यूआर कोड भी है इसका, वो भी आपके सामने अवाम के सामने शाया किया जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप जो स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आप जो है एसडीपीआई ग्रुप में शामिल होंगे इंशाल्लाह। एसडीपीआई ज्वाइन क्यों करें, एक क्वेश्चन आता है। देखिए सर, सवाल तो ये लाजिम है कि एसडीपीआई हजारों पार्टियां होने के बावजूद भी एसडीपीआई को ही क्यों ज्वाइन किया जाए, क्योंकि मैं अपने एक बात में अभी बताया कि एसडीपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी पार्टी है जो एक मजलूम के साथ खड़ी होती, जालिम के खिलाफ बोलती, हुकूमत के बेजा जो है लॉ पास किया जाता है उसके खिलाफ सबसे बढ़कर अगर कोई पार्टी बोलती तो एसडीपीआई बोलती। और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल है जहां पर जो भी हमारे चुनिंदा मेंबर रहते हैं, वो चुनिंदा मेंबर गवर्नमेंट के जानिब से दिया जाने वाला अवाम का अमानत, अवाम का पैसा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अवाम के लिए खर्च किया जाता है। किसी खास एक कम्युनिटी को टारगेट बनाकर ना तो उस पर जुल्म किया जाता है, ना तो उसे उरूज में लाने की कोशिश की जाती है। हर कम्युनिटी को एकसानियत जहां से देखते हुए एक जो है हम लोग आवाज को, अपनी हक की आवाज को बुलंद करते हैं। सर, अब लोगों में एक दौड़ है, एसडीपीआई पार्टी यानी मुस्लिम की पार्टी, सिर्फ मुस्लिम लोग उसमें रहते हैं। जी, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आप एक सियासी सोच बनाएं, क्योंकि अगर आप एक सियासी सोच नहीं बनाएंगे, हालात पर एक नजर नहीं डालेंगे, हालात से जायजा नहीं लेंगे, तो ये बिकाऊ मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, ये आपके जहनों को जो है अपने तरीके से जो है मोटिवेट करेंगे।
तो ये जो है एक मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि एसडीपीआई को खास तौर से एक मुस्लिम कम्युनिटी की पार्टी बताया जाए बोल के, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपके सामने कहा कि मेरे स्टेट और नेशनल के अंदर जो कमेटी है, स्टेट कमेटी और नेशनल कमेटी, इसके अंदर एक गुलदस्ता की तरह हमारी कमेटी है, जिसमें हर किस्म के फूल बसते, जैसा गुलदस्ते में बसते हैं, उसी तरह से हर कम्युनिटी के, हर मजहब के लोग हमारे पार्टी में मौजूद हैं। सर स्टेट में मौजूद है, लेकिन बीजापुर में आपके पार्टी में कितने बाकी मजहब के लोग हैं? जी, वही मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा भी एक उम्मीद है, हमारी भी एक ख्वाहिश है, हमारी भी एक सोच ये है कि हमारी पार्टी में अदर कम्युनिटीज भी हमारे साथ जुड़े, जो हम भी खुद जो है हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कमेटी को जो है एक गुलदस्ता की तरह सजाएं। अभी तक आपने मतलब कोई आपकी कमेटी में दूसरे मजहब के लोग जी फिलहाल नहीं है, हम लोग अप्रोच हो रहे हैं और उम्मीद भी है इंशाल्लाह इस बार ज्वाइन होंगे, क्योंकि बहुत से अदर कम्युनिटीज के लोगों ने हमें भरोसा भी दिलाया है। अब देखना यह है कि कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, इंशाल्लाह होंगे, हमारी एक उम्मीद है। क्यों सर अभी तक क्यों ज्वाइन है? आपकी पार्टी तो काफी सालों से आ चुके हैं। जी काफी अरसे से। क्या आपकी कमी रही, आप वो लोगों तक नहीं पहुंचे? नहीं, एक किस्म से हमारे अपने ड्यूटीज के अंदर हम इस कदर मशगूल रह गए कि शायद हमें पहुंचने में देरी हुई। लेकिन जब मेरा एक मानना है कि जब भी कोई चीज जब तक मजबूती से अपने आप को साबित नहीं करती, उस वक्त तक क्या है, लोग उससे जुड़ने के ताल्लुक से आनाकानी करते हैं, फिर सोचते रहते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक मुकाम पर अपनी एक मजबूती पकड़ चुकी है, जिसके जरिए अब हमारी रफ्तार को हम लोग यहां से तेज करेंगे। इसी तेजी रफ्तार के साथ साथ हम इंशाल्लाह हर कम्युनिटीज को अपने साथ में जरूर लेंगे।
इस बार की मकर संक्रांति पर मैं सारे हिंदू मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि सबको आने वाले दिन में, आने वाले महीनों में, साल में सबको खुशियां दे। ये जो नया साल है, हिंदू धर्म के कैलेंडर के मुताबिक आज से नया साल शुरू होता है और मुझे कैसे बहुत ही रंजो गम होता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है बहुत सारे गरीबों के प्रोग्राम्स दिए हैं, फाइट गारंटीज दिए हैं, जिससे इन्होंने जाहिर किया है कि वो जो है गरीबों के मुख्यमंत्री हैं। मैं जब भी उनसे मिलता था तो ये कहता था कि आप जो है मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन आपको देवराज अरस जैसे मुख्यमंत्री बनना है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो मैंने उनसे कहा कि देवराज अरस का मतलब है SC, ST, बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज सबको साथ लेके चलना है और सबको बराबर का मौका देना है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो मैं इस गर्व से कहता हूं कि आपने देवराज अरस से कुछ कम काम नहीं किया है, क्योंकि आपने लोगों की दुखती रग पर अपना हाथ रख दिया है। सिद्धरामैया जी, मैं कहूँगा कि आप बहुत ही पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं। दुनिया की तारीख में आज तक किसी ने मुख्यमंत्री ने गरीबों के बारे में नहीं सोचा जितना कि आपने सोचा है। घर की महिलाओं से लेकर नौजवान तबका, सवारियाँ, बस फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, ये कहाँ की ख्वाबों की बातें हैं, लेकिन आपने इसको सच करके दिखाया है। मैं इस बात को बहुत ही गुरूर से कहता हूँ कि आप बहुत ही मशहूर मुख्यमंत्री हो जिन्होंने हमेशा गरीबों के बारे में सोचा है। लेकिन बदकिस्मती से बीजेपी के MP जनाब हेगड़े साहब ने आपके बारे में बहुत हल्की सी बातें की हैं। मुझे बहुत ही गम होता है ये सुन करके एक सिटिंग MP, लोकसभा के मेंबर एक मुख्यमंत्री के बारे में हल्की सी बातें करते हैं और ये भी कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिद्धरामैया जी तुम जो है बीजेपी के खिलाफ है। मैं कहूँगा, और हेगड़े जी ने ये भी कहा है कि कर्नाटक में जहाँ पर भी जैसे भटकल है, कारवार है, 2-3 जगह के नाम लिया है उन्होंने, जहाँ पर एग्जिस्टिंग मॉस्क है उसको मिटा देंगे और राम मंदिर बना देंगे। आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर हेगड़े जी। व्हाट राइट यू आर हैविंग टू टेल लाइक दिस? किसी चीज को गिराना या किसी चीज को बनाना, कि मंदिर को गिराना या मस्जिद को गिराना, ये कोई आसान बात नहीं है। लॉ इज देयर, इट विल टेक इट्स ओन कोर्स, सो यू कैनॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स। यू आर ऑर्डिनरी MP, you have no status, and you cannot immediately you can attack the mosque. So it shows that whatever is going on internally, how it is possible? Don't think like that. I feel very sorry about our MP, Mr. Anant Hegde. So though he is a very senior man, he should know how to speak in the public. You being a learned man, you should have the manners. आपको कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिसका तरीका है। पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है कि आप गंदी बातें कहते जाएं और लोग इसको एक्सेप्ट करें। आप ये मत सोचिए कि आप इलेक्शन जीत गए हैं, श्री राम लल्ला के नाम पर आप इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। 4 शंकराचार्य ने उसको खिलाफ किया है, उसका भी कुछ मीनिंग है। बहरे कैफ जो हिंदुस्तान की जनता चाहेगी वो होने वाला है, और हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि इस बार हम बीजेपी को डिफीट करेंगे, क्योंकि राम लल्ला का नाम वो मिसयूज कर रहे हैं। इसीलिए मैं मेरे हेगड़े साहब से ये निवेदन करता हूं कि आप जो है मुख्यमंत्री जी से माफी मांगे, और इसी के साथ साथ में कैबिनेट की जो मिनिस्टर कैबिनेट है
येडियुरप्पा हमारे मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट है, सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स इस बात को कंडेम करें, एक रेजोल्यूशन करे, और कांग्रेस कमेटी केपीसीसी जो है वो भी एक रेजोल्यूशन बनाकर इसको कंडेम करें, एंड यू मेक इट ए पब्लिक इश्यू. Every congressman has got every duty to condemn the statement of the Anant Hegde. And now, yesterday only, our sitting MLA, जनाब यत्नाल साहब ने कहा है कि ये नकली गांधी हैं. शर्म आनी चाहिए. नकली यत्नाल जी, आपको ना तो हिस्ट्री मालूम है, ना ज्योग्राफी मालूम है, ना साइंस मालूम. यू आर नॉट ए स्टडीड मैन. Luckily, you became the politician, and always you talk nonsense. You are nonsense by birth. You told that you are going to the chief minister, you are going to the central minister, you are going to the state minister. What you are now? Already you have come, you have been elected with the bogus votes. Matter is pending in the court. और आप जो है इस तरह की गंदी बातें इंदिरा जी के बारे में कह रहे हैं, जिन्होंने गरीबी का नारा, गरीबी हटाओ का नारा लगाया, बैंक नेशनलाइज करके गरीबों को बैंक से मदद दी, देश में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास किया, जिसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन, करोड़ों एकड़ जमीन जो है गरीबों में बांटी गई. मैं खुद भी लैंड ट्रिब्यूनल का मेंबर था, बागलकोट का. आपको जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि मैं 10,000 एकड़ जो है मैंने गरीबों को लैंड रिफॉर्म्स में दिया है. आज वहाँ पर सब तिजारत कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं. इसीलिए यत्नाल जी, आप हल्की बातें मत करें. नाउ यू आर ए मैच्योर पॉलिटिशियन and you should learn the lesson from your activities. You have been condemned by the BJP. You are calling all the congressmen as gulams. You are also a gulam. Though you have been not given any position in the party, still you are there. अगर मैं आपके जगह पर होता तो मैं अभी तक राजीनामा दे के मैं घर में बैठता था. आपको शर्म नहीं है? You are a shameless fellow. Talk lot of nonsense and remains there. You are also a gulam of BJP party. You condemn Yediyurappa ji and his son, but still you are in the party. When you are not going to give anything to you, still you are in that party, which means you are also a gulam. You are also a slave. Don't forget that. Anyhow, आज का जो मौका है बहुत ही मुकद्दस है, खासकर हिंदुओं के लिए. मैं इस मुबारकबाद मौके पर ज़्यादा सियासत को न खींचते हुए मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं. और जिस चीज़ को शंकराचार्य जी, 4 शंकराचार्य जी ने खिलाफ किया है, रामलला के कार्यक्रम को, आप देखते रहेंगे कि ये जो शंकराचार्य जी हैं वो आने वाले दिनों में वो हकीकत पसंद है और हकीकत को सपोर्ट करेंगे. और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है. रामलला भी सेकुलर हैं. उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मैं हिंदुओं का देवता हूँ, या मैं कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सिर्फ हिंदू ही प्यार करें. सभी लोगों के देवता हैं हम भी. उसको हमारे हिंदुस्तान के, जैसे कि मौलाना अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि भगवान श्री राम इस देश के इमाम हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ही इज़ फॉर एवरीवन, वेदर इज ए हिंदू और मुस्लिम. इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फेथ. Some people may not like him as a god, but it is a fact that in India he is a popular Bhagwan Shri Ram is a very popular in India, and certainly we support it. But it is not that we are not supporting it because Mr. Modi is supporting or BJP is supporting. We are supporting that occasion as an Indian citizen, as a Muslim, I can say, as a congressman. So, thank you all the best, all congratulations to everybody on the occasion of the Makar Sankranti. Bye, goodbye, see you again. इस बार की मकर संक्रांति पर मैं सारे हिंदू मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं
कि सबको आने वाले दिन में, आने वाले महीनों में, साल में सबको खुशियाँ दें। ये जो नया साल है, हिंदू धर्म के कैलेंडर के मुताबिक आज से नया साल शुरू होता है और मुझे ये कहते हुए बहुत ही रंजो गम होता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है बहुत सारे गरीबों के प्रोग्राम्स दिए हैं, फाइट गारंटीज दिए हैं, जिससे इन्होंने ये जाहिर किया है कि वो जो है गरीबों के मुख्यमंत्री हैं। मैं जब भी उनसे मिलता था तो ये कहता था कि आप जो है मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन आपको देवराज अरस जैसे मुख्यमंत्री बनना है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो मैंने उनसे कहा कि देवराज अरस का मतलब है SC ST बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज सबको साथ लेके चलना है और सबको बराबर का मौका देना है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो मैं इस गर्व से कहता हूं कि आपने देवराज अरस से कुछ कम काम नहीं किया है, क्योंकि आपने लोगों की दुखती रग पर अपना हाथ रख दिया है। सिद्धरामैया जी, मैं कहूँगा कि आप बहुत ही पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं। दुनिया की तारीख में आज तक किसी ने मुख्यमंत्री ने गरीबों के बारे में नहीं सोचा जितना कि आपने सोचा है। घर की महिलाओं से लेकर नौजवान तबका, सवारियाँ, बस फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, ये कहाँ की ख्वाबों की बातें हैं, लेकिन आपने इसको सच करके दिखाया है। मैं इस बात को बहुत ही गुरूर से कहता हूँ कि आप बहुत ही मशहूर मुख्यमंत्री हो जिन्होंने हमेशा गरीबों के बारे में सोचा है। लेकिन बदकिस्मती से बीजेपी के MP जनाब हेगड़े साहब ने आपके बारे में बहुत हल्की सी बातें की हैं। मुझे बहुत ही गम होता है ये सुनकर के एक सिटिंग MP, लोकसभा के मेंबर एक मुख्यमंत्री के बारे में हल्की सी बातें करते हैं और ये भी कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिद्धरामैया जी तुम जो है बीजेपी के खिलाफ है। मैं कहूँगा, और हेगड़े जी ने ये भी कहा है कि कर्नाटक में जहाँ पर भी जैसे भटकल है, कारवार है, 2-3 जगह के नाम लिया है उन्होंने, जहाँ पर एग्जिस्टिंग मॉस्क है उसको मिटा देंगे और वहाँ मंदिर बना देंगे। आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर हेगड़े जी। व्हाट राइट यू आर हैविंग टू टेल लाइक दिस? किसी चीज को गिराना या किसी चीज को बनाना, कि मंदिर को गिराना या मस्जिद को गिराना, ये कोई आसान बात नहीं है। लॉ इज देयर, इट विल टेक इट्स ओन कोर्स, so you cannot take law in your hands. You are an ordinary MP, you have no status, and you cannot immediately you can attack the mosque. So it shows that whatever is going on internally, how it is possible? Don't think like that. I feel very sorry about our MP, Mr. Anant Hegde. So though he is a very senior man, he should know how to speak in the public. You being a learned man, you should have the manners. आपको कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिसका तरीका है। पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है कि आप गंदी बातें कहते जाएं और लोग इसको एक्सेप्ट करें। आप ये मत सोचिए कि आप इलेक्शन जीत गए हैं, श्री राम लल्ला के नाम पर आप इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। 4 शंकराचार्य ने उसको खिलाफ किया है, उसका भी कुछ मीनिंग है। बहरे कैफ जो हिंदुस्तान की जनता चाहेगी वो होने वाला है, और हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि इस बार हम बीजेपी को डिफीट करेंगे, क्योंकि रामलला का नाम वो मिसयूज कर रहे हैं। इसीलिए मैं मेरे हेगड़े साहब से ये निवेदन करता हूं कि आप जो है मुख्यमंत्री जी से माफी मांगे, और इसी के साथ साथ में कैबिनेट की जो मिनिस्टर कैबिनेट है, येडियुरप्पा हमारे मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट है, सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स इस बात को कंडेम करे, एक रेजोल्यूशन करे, और कांग्रेस कमेटी KPCC जो है वो भी एक रेजोल्यूशन बनाकर इसको कंडेम करें, एंड यू मेक इट ए पब्लिक इश्यू।
Every congressman has got every duty to condemn the statement of the Anant Hegde. And now, yesterday only, our sitting MLA, जनाब यत्नाल साहब ने कहा है कि ये नकली गांधी हैं, शर्म आनी चाहिए। नकली यत्नाल जी, आपको ना तो हिस्ट्री मालूम है, ना ज्योग्राफी मालूम है, ना साइंस मालूम। यू आर नॉट ए स्टडीड मैन। Luckily, you became the politician and always you talk nonsense. You are nonsense by birth. You told that you are going to be the chief minister, you are going to the central minister, you are going to the state minister. What you are now? Already you have come, you have been elected with the bogus votes. Matter is pending in the court. और आप जो है इस तरह की गंदी बातें इंदिरा जी के बारे में कह रहे हैं, जिन्होंने गरीबी का नारा, गरीबी हटाओ का नारा लगाया, बैंक नेशनलाइज करके गरीबों को बैंक से मदद दी, देश में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास किया, जिसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन, करोड़ों एकड़ जमीन जो है गरीबों में बांटी गई। मैं खुद भी लैंड ट्रिब्यूनल का मेंबर था बागलकोट का। आपको ये जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि मैं 10,000 एकड़ जो है मैंने गरीबों को लैंड रिफॉर्म्स में दिया है। आज वहाँ पर सब तिजारत कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इसीलिए यत्नाल जी, आप हल्की बातें मत करें। नाउ यू आर ए मैच्योर पॉलिटिशियन and you should learn the lesson from your activities. You have been condemned by the BJP. You are calling all the congressmen as gulams. You are also a gulam. Though you have been not given any position in the party, still you are there. अगर मैं आपके जगह पर होता तो मैं अभी तक राजीनामा दे के मैं घर में बैठता था। आपको शर्म नहीं है? You are a shameless fellow. Talk lot of nonsense and remains there. You are also a gulam of BJP party. You condemn Yediyurappa ji and his son, but still you are in the party. When you are not going to give anything to you, still you are in that party, which means you are also a gulam. You are also a slave. Don't forget that. Anyhow, आज का जो मौका है बहुत ही मुकद्दस है, खासकर हिंदुओं के लिए। मैं इस मुबारकबाद मौके पर ज़्यादा इन सियासत को न खींचते हुए मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और जिस चीज़ को शंकराचार्य जी, 4 शंकराचार्य जी ने खिलाफ किया है, रामलला के कार्यक्रम को, आप देखते रहेंगे कि ये जो शंकराचार्य जी हैं आने वाले दिनों में वो हकीकत पसंद है और हकीकत को सपोर्ट करेंगे। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है। रामलला भी सेकुलर हैं। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मैं हिंदुओं का देवता हूँ, या मैं कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सिर्फ हिंदू ही प्यार करें, सभी लोगों के देवता हैं हम भी। उसको हमारे हिंदुस्तान के, जैसे कि मौलाना अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि भगवान श्री राम इस देश के इमाम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ही इज़ फॉर एवरीवन, whether he is a Hindu or Muslim. It is a question of faith. Some people may not like him as a god, but it is a fact that in India he is a popular Bhagwan Shri Ram is a very popular in India, and certainly we support it. But it is not that we are not supporting it because Mr. Modi is supporting or BJP is supporting. We are supporting that occasion as an Indian citizen, as a Muslim, I can say, as a congressman. So thank you all the best, all congratulations to everybody on the occasion of the Makar Sankranti. Bye, goodbye, see you again.